Good morning, students. I am Sanjeev Patnaik, economics teacher, Rajkamal Saraswati Vidya Mandir, Dhanbad. Today, we will study the second chapter of macroeconomics. The name of the topic is Some Basic Concept of Macroeconomics. You might be knowing the difference between goods and services. Goods are the physical articles or tangible articles which can be touched, seen and felt. On the other hand, services are non-physical in nature or intangible, which cannot be seen, touched, but it can be felt. So this is the difference between goods and services. Now, what are the different categories of goods, or what is the classification of goods? Goods are broadly classified as intermediate goods and final goods, and second one is your consumer goods and capital goods. So first one is intermediate good and final good. Whether a good is final or intermediate, it depends upon its final use और end use. मतलब कि एक commodity और एक good final है कि intermediate है, ये depend करता है उसका last use के ऊपर, final use के ऊपर. So first one is your final good. If goods are purchased for consumption, that is for satisfaction of wants or for investment, so you must remember two things. First one is consumption and second one is your investment. कंजम्पशन पर्पस के लिए अगर आप गुड परचेज़ करते हो या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर गुड्स परचेज़ करते हो तो हो जाएगा फाइनल गुड. और ये गुड को परचेज़ करने में जो एक्सपेंडिचर हुआ है इसे कहा जाता है फाइनल एक्सपेंडिचर. सो द expenditure incurred on these goods are called final expenditure. Now what are the example of final goods? First one is milk purchased by household, or wheat purchased by household, rice purchased by household. These are all the commodities are purchased for consumption purpose, so these goods are called final goods. Machine purchased by a firm for installation, this is for investment purpose, so this is also a final good. Now intermediate good, goods and services purchased by a production unit from other production units, which with the purpose of reselling or with the purpose of using them completely during the same year. मतलब कि अगर एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से कोई सामान परचेज़ करता है रीसेलिंग के लिए, मतलब उसको बेचने के लिए, या तो उसको एक साल के अंदर यूज़ कर लेने के लिए, तब उसको कहा जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स. और उस इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन देम इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट. ओके, नाउ द एग्जांपल इज मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय ए मोबाइल डीलर और परचेज ऑफ राइस बाय ए ग्रोसरी शॉप. हम लोग जो सामान परचेस करने जाते हैं, चावल दाल सब्जी एट्सेट्रा, जो दुकानदार से हम लोग परचेस करते हैं वो भी कहीं से परचेस करके लाता है और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है उसको वो बेचता है. तो उस तरह का जो सामान हुआ जो कि एक ग्रोसरी शॉप वाला परचेस करता है उसे कहा जाता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स. नाउ द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. द फर्स्ट वन इज इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which have not yet crossed the boundary of production, On the other hand, final goods are those goods which have crossed the boundary of production. यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये प्रोडक्शन ऑफ बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन. ये बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, लेकिन जो फाइनल गुड्स है इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर हो गया है. सेकेंड वन, इट मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग ईयर. मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स को एक फर्म रीसेल कर सकता है, इसको हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके. ऑन द अदर हैंड फाइनल गुड्स कैन नॉट बी रीसोल्ड, इसको आप रीसेल नहीं कर सकते हो. थर्ड वन इज़ वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड. जब ये सामान प्रोडक्शन प्रोसेस में है तब आप उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो. देयरफॉर इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स इन विच वैल्यू कैन बी एडेड.
ऑन द अदर हैंड फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स इन विच वैल्यू कैनॉट बी एडेड, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है, इसीलिए इसमें और कोई भी वैल्यू ऐड हम लोग नहीं कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट एस्टिमेटेड और नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। मतलब जब हम लोग नेशनल इनकम एस्टिमेट करेंगे तो उस समय इंटरमीडिएट गुड्स को हिसाब नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड जब हम लोग नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो उस समय फाइनल गुड को इंक्लूड किया जाएगा। फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बट इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग national income. Okay, now the last part is your consumption goods and capital goods. Consumption goods are also called consumer goods. So those goods which are directly used for the satisfaction of human wants. जैसे कि अभी पहले बताया आपको कि अगर हम लोग कोई चावल दाल सब्जी परचेज करते हैं तो वो हम लोग खुद कंज्यूम कर जाते हैं, अपने लिए उसको परचेज करते हैं, तो उस तरह का गुड्स को कहा जाता है आपका कंजम्पशन गुड्स या तो कंज्यूमर गुड्स। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेकेंड वन इज़ सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, थर्ड वन नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, एंड लास्ट वन इज योर सर्विसेज। सो फर्स्ट वन इज़ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। Durable consumer goods are those goods which can be used for several years. First point, जो कंज्यूमर गुड्स को बहुत सालों तक यूज़ किया जाता है। और सेकेंड हो गया एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, और इसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये 2 क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई करेगा तभी जाके उसको हम लोग ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, टीवी एट्सेट्रा। ना सेकेंड वन इज सेमी ड्यूरेबल। Semi durable goods are those goods which can be used for a period of 1 year or slightly more. First condition, जो सामान 1 साल और 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। और सेकंड हो गया लेस वैल्यू एज कम्पेयर टू ड्यूरेबल गुड्स, और ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में इसका वैल्यू कम होगा। तो इस तरह का जो सामान हुआ इसे कहते हैं आपका सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इसमें एग्जाम्पल आएगा आपका क्लॉथ्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, furnitures etc. Now the third one, non-durable or single-use consumer goods. So non-durable consumer goods are also called single-use consumer goods. So non-durable consumer goods are those goods which are used up in a single act of consumption. जो भी कमोडिटी को हम लोग एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रेड अगर हम लोग खा लिए तो फिर से वही ब्रेड को हम लोग नहीं खा सकते हैं। मिल्क अगर पी लिए तो फिर से वही मिल्क को नहीं पी सकते हैं, दूसरा मिल्क हो सकता है, दूसरा ब्रेड हो सकता है। पेट्रोल अगर एक बार यूज़ कर लिए तो फिर से वही पेट्रोल यूज़ नहीं कर सकते हैं, फिर से दूसरा पेट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। सो दीज गुड्स आर कॉल्ड योर सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नाउ द लास्ट वन इज सर्विसेज। सो सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स। अभी पहले बताया आपको कि गुड्स और सर्विस से डिफरेंस हो गया। सर्विस हो गया आपका नॉन मटेरियल गुड्स और नॉन फिजिकल गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स का जो सेटिस्फाई करता है डायरेक्टली, जो नॉन मटेरियल गुड्स होता है उसे कहते हैं सर्विस, जिसमें आता है आपका डॉक्टर का सर्विस हो गया, लॉयर का सर्विस हो गया, कि डोमेस्टिक सर्वेंट का सर्विस हो गया, कि टीचर का सर्विस हो गया। ये सब हो गया आपका सर्विसेज। और ये लास्ट कैटेगरी ऑफ consumer goods. Now next one is capital good. The fixed assets of producers like plant and machinery are called capital good. एक फर्म या एक इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे चीज़ यूज़ करता है। जो प्लांट और मशीनरी होता है, बहुत सारे चीज़ों में ये 2 इम्पोर्टेंट है। जो प्लांट और मशीनरी होता है ये हो गया एक फर्म का फिक्स्ड एसेट्स। तो ये जो फिक्स्ड एसेट्स है जिसको यूज़ करके आउटपुट बनाया जाता है बाय ए फर्म, उसे कहा जाता है आपका कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो इसमें इसको थोड़ा सा
देखना है प्रोड्यूसर गुड क्या है और ये कैपिटल गुड क्या है। कैपिटल गुड तो अभी देखें, कैपिटल गुड में आता है आपका फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरीज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक प्रोड्यूसर सामान प्रोड्यूस करने के लिए जो जो इनपुट यूज़ करता है वो सबको प्रोड्यूसर गुड कहते हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स में आपका फिक्स्ड भी आएगा, फिक्स्ड एसेट भी आएगा और वेरिएबल इनपुट्स लाइक वेरिएबल रॉ मटेरियल भी आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें फिक्स्ड एसेट भी आता है और वेरिएबल एसेट भी आता है, लेकिन कैपिटल गुड में खाली फिक्स्ड एसेट आता है। तो क्वेश्चन कहता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मतलब कि जो भी आपका कैपिटल गुड्स है वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं, है कि नहीं है। जैसे तो फिक्स्ड एसेट यहाँ पे है, यहाँ भी है फिक्स्ड एसेट, तो सारे के सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में तो रॉ मटेरियल भी आता है, वेरिएबल एसेट भी आता है। तो ये वेरिएबल कहाँ पे यहाँ पे है, नहीं है। इसीलिए सारे के सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।